Good morning, dear students. I am Mukesh Asthana. We were studying about the chapter number 4 of Snapshot, Albert Einstein at School, and we were on the page number 28. Yesterday we had finished on page number 28, and we were on the nearly the last paragraph when you will see the lines. And I had told you that Albert was very much perturbed, very much disturbed about his condition at school. So he wanted to get rid of from his institute. So he pretended, he discussed with his nearest friend, Mr. Yuri, that if I would meet to any doctor and if he ready to give me the certificate of nervous breakdown, then I will be able to take leave from the school, and this surely uh, be would work like an emancipation from the school. So he would be able to go to the desired place at Milan at Italy, in Italy. Now after this, as we proceed further on page number 28, you knew him as a patient then. Not exactly, Yuri admitted. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. तो उसके फ्रेंड यूरी ने कहा कि मैंने एक डॉक्टर से बात किया हुआ है. What I apprehend that you will be the first patient of him. You knew him as a student then. एल्बर्ट ने पूछा, इसका मतलब आप उसको एज ए स्टूडेंट जानते हैं क्या? एज ए स्टूडेंट तुम उसको जानते हो क्या? पहले से ही शायद परिचय रहा होगा तुम्हारा. I have known Ernest 4 years. Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool, he warned Albert. उसने एल्बर्ट से कहा कि हाँ, मैं बहुत साल से जान तो रहा हूँ मैं डॉक्टर अर्नेस्ट वेल को, लेकिन तुम उसको एज एन एक्सक्यूज़ मत लेना, एज ए ग्रांटेड मत लेना. ही इज़ नॉट ए फूल, ही इज़ अ MBBS डॉक्टर, ऑल्दो ही हैज जस्ट पास्ड हिज डिग्री. लेकिन इसको मूर्खता में मत लेना. व्हाट डू यू मीन? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, दैट्स ऑल. ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है टू पुल द पूल ओवर हिज आइज मीन्स टू मेक समबडी stupid, to understand somebody that he is not knowing anything, he is innocent. तो उसने कहा कि इस तरह से मत व्यवहार करना कि उसको तुम बिल्कुल मूर्ख समझो या इनोसेंट समझो. दैट्स ऑल. बी फ्रैंक विद हिम, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट what you haven't. Not that you had deceived anyone. Yuri added, you are the world's worst liar. उसने कहा बिल्कुल फ्रैंकली अपनी समस्या बताना डॉक्टर से, और ये मत सोचना कि ऐसा प्रिटेंड मत करना कि उसको तुम बेवकूफ़ बना सकते हो. अपनी सारी समस्याएं, वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव, कीप इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग टू द डॉक्टर. और वैसे तो मुझे मालूम है तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो. यू आर द वर्ल्ड बिगेस्ट लायर, ही सेड. Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. Albert ने next day ये सोचते हुए बताया कि when he would meet the doctor, what he would say to doctor.
So he was very much worried, very much perplexed and embarrassed what to say, और वो रियली नर्वस हो गया. Now next page, page number 29. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Wheel, he began. उसने कहना शुरू किया जब उसकी डॉक्टर से मुलाकात हुई. He began to describe his condition. उसने कहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से बात को शुरू करूँ. He began. Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. उन्होंने कहा कहीं से शुरुआत मत करो. उसको फ्रेंडली स्माइल दिया और कहा कि तुम्हारे दोस्त यूरी ने मुझे सब बता दिया है, इसलिए तुम कोई भी बहाना मत करो और ना ही ये सोचो कि यू हैव टू टेल 6 and 7 समथिंग. Oh, what did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. डॉक्टर ने कहा कि हाँ, उसने मुझे ये हिंट दिया है कि तुमको वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन है एंड यू डोंट वांट टू गो टू, यू आर नॉट रेडी टू गो टू स्कूल. तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो. ओ डियर एल्बर्ट फेस फेल, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट. टू फेस फेल मीन्स टू बिकम डिसअपॉइंटेड. वो निराश हो गया. हे भगवान, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था. Why not? Isn't it true then? क्यों नहीं कहना चाहिए था? बिल्कुल सही बात है ना ये. Yes, that is the trouble. Now you will say there is nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. लेकिन डॉक्टर एल्बर्ट ने कहा कि दिक्कत अब यहाँ ही शुरू हो रही है, क्योंकि आप शायद ये सोचेंगे दैट आई एम प्रिटेंडिंग, कि मैं बहाना बना रहा हूँ, और ऐसे बहाने का तो कोई इलाज नहीं है. आप समझाएंगे मुझे कि मुझको फिर से वापस स्कूल चले जाना चाहिए. आई शुड जॉइन द स्कूल. डोंट बी श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल. डॉक्टर ने कहा नहीं, एकदम से डोंट रीच एट दैट कंक्लूजन, उस निष्कर्ष पे मत पहुंचो कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुमको कुछ बीमारी है, नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह है. बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट वाइड आइड. हाउ कैन यू नो दैट? लेकिन मैंने तो अभी आपको कुछ बताया नहीं है. हिज आइज became broad with the astonishment. How can you know that? आप ऐसा कैसे जानते हैं? Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why now, said the doctor briskly. क्योंकि आप जानते होंगे कि एक मेंटलिटी होती है कि कोई भी डॉक्टर के पास इस तरह से नहीं जाता. Whenever he is not ill, वो बीमार ना हो जब तक कोई जाएगा नहीं. तो डॉक्टर ने यही कहा कि यदि तुम मेरे पास आए हो तो इसका मतलब तुमको कुछ ना कुछ बीमारी है. मुझे तो इतना ही सोचना है. If I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? उन्होंने तेज़ी से कहा कि यदि मैं मान लो मैं तुमको एक सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि तुमको नर्वस ब्रेकडाउन की बीमारी है और तुमको स्कूल से दूर रहना चाहिए, मीन्स यू मस्ट टेक सम हॉलीडे फ्रॉम द स्कूल. सो यदि मैं ऐसा सर्टिफिकेट दे देता हूँ तुमको, तो इसके बाद तुम क्या करोगे? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप?
I will go to Italy, said Albert, to Milan where my parents are. एल्बर्ट ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताई. ही टोल्ड अबाउट हिज फ्यूचर प्लानिंग that when he would get rid of from the school, from his polytechnic diploma, then directly he would go to Italy, at Milan where his father lives. जहाँ उसके मम्मी पापा रहते हैं मिलान में, वहाँ जाएगा वो. And what will you do there? और तुम वहाँ जाके क्या करोगे? I will try to get into an Italian college or institute. So Albert had given the reply that मैं किसी इटालियन कॉलेज में जाऊंगा या इंस्टीट्यूट में. I would try to take admission in that school. तो आप समझ सकते हैं कि दैट एक चीज़ होती है होम सिकनेस. होम सिकनेस मीन्स दैट इफ़ यू हैव स्पेंड a lot of time with your parents and when you go to some stranger city where there is no one familiar to you, you pass your time in a strange manner, aloneness, so you feel always all 24 hours about your home. You think, you ponder about your home only, and you want that as soon as I should reach to my home anyhow, किसी न किसी तरीके से जल्दी से जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं, कितना अच्छा रहेगा. If he has to go after 15 days, then he will count each days. He would put a tick in calendar that how many days have been passed. So this kind of thing is called the homesickness. So we feel that at this time the same condition was of Albert Einstein, because he did not like the environment of Munich of Germany where he was studying, where he had to take his certificate from the polytechnic, and this was of the 5 years. तो उसने कहा कि मैं इटालियन कॉलेज में जाऊंगा, मैं वहाँ से एडमिशन लूँगा मैं. हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा? डॉक्टर ने पूछा आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, तुम अपनी आधी अधूरी पढ़ाई छोड़ के कौन सा कॉलेज, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो तुमको एडमिशन देगा? इसका भी हल, इसका भी सॉल्यूशन एल्बर्ट आइंस्टीन के पास था. आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर to give me something about my work, and perhaps that will be enough. I have learnt all the maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. V looked doubtful. तो उसने कहा कि जो मैथ टीचर जो मुझको पढ़ाते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए ऐसा लिख के कि that I am very much talented in the math. तो शायद ऐसी कुछ प्रोसीजर होती होगी कि यदि इफ़ एनी टीचर गिव सर्टिफिकेट अबाउट यू ऑफ डिस्टिंक्शन, देन यू कैन टेक एडमिशन इन अनदर स्कूल. तो शायद उस समय ये रूल चलता होगा. तो उसने कहा कि क्योंकि कॉलेज में मुझे जितनी मैथ पढ़ाई जाती है, मैं 5 साल की मैथ पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ. तो आपको यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन की एक क्वालिटी पता लगेगी कि भले ही वो कुछ नीची क्लास में थे, लेकिन मैथ उनकी बहुत अच्छी थी. यहाँ तक कि जो पॉलीटेक्निक 5 इयर्स का था, 5 ईयर तक की पूरी मैथ उनको आती थी. सो मैथ टीचर हैड सम वेरी cordial place in his heart, and he used to appreciate him time to time. He added when Dr. V looked doubtful. Well, it's up to you, he said. उन्होंने कहा ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करते हो. He said, I doubt if it will come off. Come off means to fructify. मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा. What I can see you are not doing yourself
or anyone else much good by stating staying here. लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने जो तुम्हारा इंटरव्यू लिया, अब तक तुमसे जो कन्वर्सेट किया, मुझे ये पता लग गया कि यहाँ रह के तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो और यहाँ पे रह के ना ही पेरेंट्स का भला हो पा रहा है, ना ही तुम्हारी पढ़ाई हो पा रही है. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? वुड 6 month बी ऑल राइट? तो तुमको मैं ये कितने टाइम का सर्टिफिकेट बना के दे दूँ? कितने टाइम का सर्टिफिकेट ठीक रहेगा तुम्हारे लिए? उन्होंने क्या 6 month ठीक रहेगा? यानी डॉक्टर यदि ये लिख दें कि मैं पॉलीटेक्निक से इस बच्चे को 6 महीने की छुट्टी चाहिए बिकॉज़ ही इज़ द पेशेंट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन, और इसी 6 महीने में तुम मिलान चले जाओगे, इटली चले जाओगे. तो उन्होंने पूछा क्या 6 month ठीक है? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू सर, बहुत ही अच्छा रहेगा, एल्बर्ट ने जवाब दिया. इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो नाउ यू फील हाउ यू फील. हियर यू आर. डॉक्टर व्हील हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक. उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ स्टूडेंट की कंडीशन, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही रहा हूँ. अभी फ्रेशली आई हैव joined the profession of doctor, so 5 year also I have spent as a 4 year or 5 year, whatever the term is, duration is of becoming a doctor. तो उन्होंने कहा मैंने भी इतना टाइम स्पेंड किया है, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स की क्या कंडीशन होती है. सो हियर यू आर, ये लो अपना सर्टिफिकेट. डॉक्टर व्हील हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक. उन्होंने कहा और तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक टू यू. हाउ मच? हाउ मच का मतलब हो गया कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना प्रेस्क्रिप्शन देता है, तब आप फ़ीस पूछते हैं कि कितनी फ़ीस हुई. हाउ मच शुड आई पे? ही वांटेड टू आस्क. नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू ए मील. ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक. उन्होंने कहा नहीं नहीं, पैसा कुछ नहीं लेना है मुझे, लेकिन यदि तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो तुम यूरी को किसी डिनर पर ले जाना, अच्छी तरह किसी होटल में खाना खिला देना. यही मेरी फ़ीस है. वो मेरा भी अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी है. एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर व्हाट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर. हालांकि वास्तविक कंडीशन ये थी, रियल कंडीशन वाज दैट ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा ऐसा नहीं था, लेकिन उसने ऐसे प्रिटेंड किया हाँ ठीक है उसके पास पैसा है और वो ज़रूर यूरी को खाना खिला देगा. ओके फ्रेंड्स, टुडे वी हैड फिनिश्ड अप टू पेज नंबर 29, डियर स्टूडेंट्स. So I want to again say that if you have any query, if you could not understand any part, you can ask to me again and again. Thank you very much.